Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I am your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen, and today I am over here to teach you biology. Grade 9 Syntax book board. Syllabus हमारे पास है 9 chapters हैं. Chapter number 1 Introduction to Biology. It's done, completed and checked by myself. Chapter number 2 Solving and Biological Problems. It's also done. Chapter number 3, biodiversity, it's also completed. Chapter number 4, cells and tissues, it's also done. Chapter number 5, cell cycle, it's also done. We are going to study about chapter number 6, enzymes. Then we have chapter number 7, 8 and 9. Inshallah, in 2 or 3 classes, हम chapter number 6, enzymes with exercise complete कर लेंगे. फिर हमारे पास 3 चैप्टर्स रह जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो हमारा पेंडेमिक टाइम है, वी हैव 4 वीक्स, हम इसमें ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या हैं. इन दिस चैप्टर मेजर कॉन्सेप्ट्स जो वो हैं हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हैं. In this unit, we will learn about enzymes, how they work, how they mix with other substances, what is specialty in enzymes, and how enzymes bante kaise hain, each and everything about enzymes. You can see in the picture enzyme. ये है आपका enzyme, जिसमें active site है and subtracted है. Okay, ये तो picture मैंने आपको दिखाई है, ये तो बहुत जरूरी है. जहां जहां हम लेसन को एंजाइम्स को पढ़ेंगे, ये पिक्चर कीप इन योर माइंड. आई विल शो आल्सो इन स्लाइड में भी मैं शो करती रहूंगी. एंजाइम की डेफिनेशन है, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. डोंट गो. ये एंजाइम है. सब्सट्रैक्ट क्या होते हैं, एक्टिव साइट क्या होती है, और ये एंजाइम का बेसिक काम होता क्या है. ये the high amount of activation energy cannot be provided by organism itself. Therefore, they require some facilitators to reproduce this activation energy. These facilitators are special molecules made up of mostly protein called enzymes. सबसे पहले जो एक लाइन अपने यहाँ पर मेमोराइज कर लीजिए forever, that is enzymes प्रोटीन से बनते हैं. ठीक है, मैं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ताकि उसका इंटरलिंक एक का दूसरे के साथ हो और आपको वो चीज एक स्टोरी की तरह याद है. एंजाइम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है. सबसे पहले आपको पता हो कि एंजाइम्स बनते किस चीज से. एंजाइम किससे बन रहे हैं, प्रोटीन से. नाउ यू शुड नो प्रोटीन आपकी बॉडी में आ कहां से. ऑब्वियसली अब मैं बिल्कुल अगर 2, 3, 4 स्टैंडर्ड की चीजें चली जाऊंगी तो मेरा टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाएगा. ई एन इनसाइट एंजाइम की अब देखिए बहुत प्यारी सी डिवीजन की है. ई एन इनसाइट ZYME ज़ाइम, यीस्ट, जो एक खमीर चीज होती है उसको कहते हैं. ये हमारी इनसाइड बॉडी में ही होते हैं. एंजाइम्स बनते किस चीज से हैं, प्रोटीन से. सॉरी बेटा, काफी जरा इन्फेक्शन हुई पड़ी और जिस तरह से मैं पढ़ा रही होती हूँ ना वो ज्यादा हो रही. The name was coined due to observation when yeast was introduced in fruit sap, which converted into alcohol. Now the enzymes are defined as the biologicals which facilitate chemical reaction by lowering activation energy. This action of enzymes allows biological reaction to produce rapidly at relatively low temperature and pressure, troubled by living organisms. बता रही, पढ़ने दीजिए. Life is another name of activity. Therefore, thousands of chemicals reactions take place in the body of the organisms. Body of the organisms. सुनते जाइए. These reactions of an organisms are collectively called metabolic reaction, and this phenomenon of
chemical activity called metabolism. The metabolic activities are always of two types, constructive and destructive. Constructive and destructive, दो तरह की होती है. कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं. जी, एंजाइम बायोलॉजिकल वर्ड है, हमारी बॉडी में होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, और ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप करता है हमारी बॉडी के किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं. एंजाइम्स होते क्यों हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों हमारी बॉडी में? आप एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. आप गाड़ी चलाकर या बाइक चलाकर स्कूल आते हैं, रोज लेट हो रहे होते हैं, क्या करते हैं? अपनी बाइक की जो चेन है उसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या उसमें पेट्रोल डालते हैं, जो चीज है उसके साथ किसी को अटैच करते हैं. चेन फंस रही है, चेन उतर रही है, वहां से बाइक स्लो चल रही है, साइकिल स्लो चल रही है, साइकिल स्लो चल रही है, तो आप क्या करेंगे? वहां चेन लगा ऑयल लगाएंगे. जिस तरह से ऑयल खत्म नहीं हो रहा, सिद्रा ने हमें ज्वाइन कर लिया और वो काम कर रहा है, इसी तरह से एंजाइम्स होते हैं स्पीड अप करने के लिए. बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को, फंक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं, रिड्यूस या कम करने. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं. अच्छा, होता यह है कि जैसे जैसे इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, ये अपने काम को उतना ही क्विकली करते हैं. इस एंजाइम्स में एक खास बात ये होती है कि एंजाइम्स की शक्ल जब तक प्रॉपर रहती है वो अपना काम करते हैं. अगर उनकी शक्ल टूट जाती है या शक्ल नहीं बनती या शक्ल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एंजाइम वो काम नहीं कर सकते. एंजाइम फिर वो काम करते ही नहीं. वो जल्दी जल्दी परफॉर्म करता है, कौन? एंजाइम. और एट द टाइम वो खत्म नहीं हो रहा होता. वो खत्म, डिस्ट्रॉय कब होगा? जब उसकी शेप, शक्ल चेंज हो जाती है. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं? यस, फॉर एग्जांपल एक आग लगी हुई है, उस आग को तेज करना है. हम लकड़ियां डालते जाते हैं, लकड़ी डालते जाते हैं, आग बर्न होती है, तेज होती है. अब वो लकड़ी खत्म तो नहीं हुई, वो क्या बन गई? कोयला बन गई. अब कोयले का काम डिफरेंट होगा, जलेगा वो भी, लेकिन वो अपनी शक्ल खोने के बाद उसकी वो चीज नहीं है. इतनी बड़ी देख लकड़ियों के चूल्हे पर जलाकर, लकड़ियां जलाकर जो आप पकाते हो, वो कोयला तो नहीं पका पाएगा ना. कोयला जरूर आपको आग दे रहा होगा. तो मतलब कि जब तक एंजाइम की शक्ल प्रॉपर वही रहती है, एंजाइम वही फंक्शन में, वही रिएक्शंस में वो काम करता है जिसकी उसे जरूरत होती है, या जब वो बनता है, या इसकी नीड पे आ जाती है बात कि हमें उसकी, हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस की कितनी नीड है. अच्छा, अब ये नहीं है कि मेरी बॉडी में जो एंजाइम मेरे स्टमक में काम कर रहा है तो वो एंजाइम उठ के मेरे ब्रेन में भी काम करना शुरू कर दे. डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट एंजाइम्स. मुस्कान का बॉडी के एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आके काम नहीं करेंगे. या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स जो हैं हमारे सर्कुलेशन में काम नहीं करेंगे. जहां का है वो उसी एरिया में उतना ही काम करेगा. एंजाइम, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं और लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं. स्टेप बाय स्टेप इजी.
एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लिविंग बॉडीज के अंदर मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम का जो स्पेशल काम होता है वो केमिकल रिएक्शन को प्रोटेक्ट करना, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन है, जितने भी, उनकी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जितने भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस बॉडीज में होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। जी, समझ आ रही है ना बेटा आप लोगों को? सित्रा, यस मिस। मुस्कान, यस मिस। यस मिस। मुस्कान आवाज के साथ बताइए, समझ आ रही है? यस मिस। गुड। जहां समझ ना आए इंटरप्ट कर सकते हैं मुझे कि टीचर ये चीज समझ नहीं आ रही है, दोबारा से बता दें। मिस अभी आपने कौन सा वर्ड बोला था? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मिस हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो किस टाइप के हैं? देखिए बॉडी में सबसे पहले सुन लीजिए, एंजाइम प्रोटीन से बनते, ठीक है। ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है? जैसे लुब्रिकेंट होता है ना, ऑयल होता है, गाड़ी में डालते हैं हम तो वो गाड़ी को स्पीड अप करता है, गाड़ी की चेन को, बाइक की चेन को और साइकिल की चेन को तेज करता है, तेज चलता है। इसी तरह से एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं। और इन सारे केमिकल्स रिएक्शन को जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। समटाइम हम कहते हैं ना इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंजाइम्स जो है वो वीक हैं, एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। अब वो एक अलग बात है कि वो काम क्यों नहीं कर रहे होती है, क्या वजह होती है। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, नए न्यू टॉपिक्स पे आते जाते हैं तो उसकी डिटेल और आती जाती है। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म की बात हुई। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप्स की होती है, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ाई थी ना, 2 टाइप्स। ये देखिए, लाइफ इज अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी। लाइफ एक नाम है एक्टिविटी का जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और मेटाबॉलिकल रिएक्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस केमिकल एक्टिविटीज को जो कि हमारी बॉडीज में हो रही हैं, इन केमिकल एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मैंने ये लाइंस पढ़ी है ना आपके सामने, ये वाली स्लाइड पढ़ी है। अब ये मेटाबॉलिज्म्स 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव से ऑल ऑफ यू, कंस्ट्रक्टिव बोलिए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जी, आ जाए न्यू स्लाइड पे। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड to form a structure of cell or body. These reactions are called anabolic reactions, and this type of metabolism is called anabolism. समझ आई? बहुत इजी लाइंस है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उस रिएक्शन में होता है जहां पर कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव 2 टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की। यहां पर लार्ज मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कैटाबॉलिज्म में जी क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नो मिस। नो मिस। ओके, एनाबॉलिक देखिए, ये वर्ड आपको पता चल रहा है यहाँ पर, एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म। यस जी, ये ऐसा रिएक्शन होते हैं जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। क्या होता है? लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं
और इन रिएक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. नीड energy in this process, and the process in which new large molecules बन रहे हैं उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं. कौन सी एनाबॉलिज्म्स कौन सी टाइप में है? फर्स्ट टाइप में, कंस्ट्रक्टिव में. हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ देखिए वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बन रहे हैं. कंस्ट्रक्शन से मीनिंग ही उससे है. कंस्ट्रक्टिव न्यू लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं. एनाबॉलिज्म. क्लियर? समझ आ गया? यस मिस. Yes, miss. सेव करके Yes, बताइए, समझ आ गया? यस. Yes. ग्रेट, गुड. अब है डिस्ट्रक्टिव. In destructive reactions, large molecules break down into molecules to produce energy. अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होते हैं. लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और जब मॉलिक्यूल्स की तोड़ होती है तो एनर्जी रिलीज होती है. यहां भी क्या हो रहा है? ये लार्ज मॉलिक्यूल है. इट्स ब्रेक डाउन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स. और जब ये रिएक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है. इन दिस प्रोसेस large molecules break down and energy released हो रही. इस प्रोसेस को मेटाबॉलिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. Say all of you, कैटाबॉलिज्म. कौन सा? Catabolism. ये वाला कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म. Catabolism. सबसे पहले तो आपको देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ. इजी स्टोरी. एंजाइम्स बनते किससे हैं? प्रोटीन्स पे. प्रोटीन से बनते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में होते हैं. ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि हमारी बॉडी में हो रही होती है स्पीड अप करने का काम करते हैं. ये एक चेन है. ये तब तक काम करते हैं, तब तक मेटाबॉलिज्म अपना एंजाइम्स काम करते हैं जब तक उनकी शक्ल नहीं बिगड़ती. उनकी शक्ल मखसूस होनी जरूरी होती है. इन सारी चीजों को जो कि केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म्स की दो टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं. सॉरी, मिस की कॉल आ रही है, मैंने डिस्कनेक्ट की है. लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है. ये प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिज्म. क्लियर? यहां तक समझ आ गया? Yes. यस मिस. यस मिस. हाय शुक्र है, अच्छी बात है. ये मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? No, miss. गुड. नो मिस. नो अब मिस. हम दोबारा से बात करते हैं एंजाइम्स की. सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया, एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, बॉडी में मौजूद होते हैं. ये भी हो गया. और हर रिएक्शन में, हर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, स्पीड अप करते हैं. ये भी मैंने आपको बता दिया है. ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम काम करते हैं, यानी कि ठीक है, बिल्कुल, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें काम करते हैं. ये भी हो गया. अब बात आती है इस पिक्चर को देख के सब्ट्रैक्ट. ये पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा, अगर केमिकल रिएक्शन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम्स की शक्ल बिगड़ जाती है, एंजाइम्स काम नहीं करते. इसलिए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहना जरूरी होता है. ये देखिए, ये इसकी एक्टिव साइट है. एंजाइम्स जो है ना, उनकी सब्ट्रैक्ट, ये देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ये बेसिकली इसके साथ मिलकर काम करता है और यहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है.
ये एक्टिव साइड यहाँ पर आई तो ये एंजाइम, इसने आपकी बॉडी को पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। दिस इज एंजाइम, ये है काम। सब्ट्रैक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। मुश्किल है ये कोई? क्लियर? नो मिस। अब मैं No, आपसे miss. पूछूंगी एंजाइम्स Yes. क्या है। नो मिस। जो स्टोरी मैंने बताई है मेरे ख्याल से उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। यस मिस। ठीक है, क्लियर? कुछ और पूछना है? Yes. क्या पूछना है No. बताइए। चलिए अब जरा मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और कैमरा पे आते हैं। अब बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं? जी जी मुस्कान बताइए। एंजाइम्स, शाफिया, मेरे प्यारे बच्चों बताइए। यस मिस। मिस एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। गुड। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? मिस हमारी बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दैट्स ग्रेट। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म? 2 types. 2 types. गुड, टेल द नेम्स। कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव। Constructive, destructive. डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या फर्क है? Constructive में large molecules. मिस कंस्ट्रक्टिव में ना लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और डिस्ट्रक्टिव में मीन्स वो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। यस मिस। With breakdown होते हैं. अच्छा, यानी कि मेरे बच्चों को टॉपिक समझ आ गया। यस मिस। That's great. तो फिर हम इंशाल्लाह कल मिल रहे हैं नए टॉपिक के साथ। अब हम पढ़ेंगी नेक्स्ट, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे ही ये 2 दिन में हमारा लेसन इंशाल्लाह चैप्टर फिनिश होगा तो देन वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। आई एम No, हियर। miss. नो मिस। ओके, देन से बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लाफिज। लव यू ऑल।